منڈی بہاؤدین میں کار ٹرین کی زد میں آ گئی۔ ملت ایکسپریس کی ٹکر کے بعد گاڑی نہر میں جا گری، 3 افراد جاں بحق۔ ریسکیو کے مطابق حادثہ پھاٹک نہ ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ سرگودا کی تحصیل بھلوال میں شوگر مل میں 5 مزدور گرم شیرہ گرنے کے باعث جلس کے 2 کی حالت تشویشناک، ایک مزدور کو لاہور منتقل کر دیا گیا۔ خانپور میں شوہر کو دوسری بیوی سے طلب کلامی مہنگی پڑ گئی۔ بیوی نے شوہر کی مونچھیں اور بھویں کٹوا دی۔ شادی کے بعد پتہ چلا بیوی نے پہلے بھی کئی نکاح کیے، اس بارے میں پوچھا تو جھگڑا ہو گیا، شوہر کا موقف۔ شہدائے باچا خان یونیورسٹی 4 سدہ کی یاد میں تقریب، طلبہ اساتذہ کی بھرپور شرکت۔ پولیس اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کے جوانوں نے یادگار پر پھول چڑھائے۔ وائس چانسلر 4 سدہ یونیورسٹی کی قبر پر حاضری فاتح خانی۔ ملک بھر میں مہنگائی کا راج، آٹا، چینی، دالیں اور دیگر اشیاء فروشت کی قیمتیں بڑھنے پر شہری شدید پریشان۔ کئی شہروں میں مہنگا آٹا بھی نایاب، عوام کی حکومت سے قیمتیں کرنے کی اپیل۔ پنڈی بھٹیا میں حکومت پنجاب کی کروڑوں روپے کی اراضی پر قبضہ، سیوریج کے لیے لگائے گئے ٹیوب ویل بھی غائب۔ شہریوں کا وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے کارروائی کا مطالبہ۔ بلوچستان حکومت کی طرف سے سبی میں اقلیتی برادری میں امدادی چیک تقسیم۔ صوبائی مشیر اقلیتی امور رکن صوبائی اسمبلی دھنیش کمار نے مستحق افراد کو چیک پیش کیے۔ باجوٹ میں نوجوانوں اور تاجر برادری کے لیے ایف سی نارتھ کی جانب سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ورکشاپ کا اہتمام، نوجوانوں اور تاجر برادری کی بھرپور شرکت۔ حیدرآباد میں خواتین فٹ بال کا دلچسپ میلہ، گرلز فٹ بال چیمپئن شپ کے فائنل میں ٹنڈو جام نے کراچی کو ہرا کر ٹائٹل جیت لیا۔ سوات کے دلکش نظارے، پہاڑوں کے دامن میں 2000 سال پرانے آثار قدیمہ دریافت، قدیم ثقافت کو دیکھنے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ اور ضلع سانگڑ کی بقا جھیل تفریح کا بہترین ذریعہ، جھیل کئی اقسام کی مچھلیوں کا مسکن، دلکش نظارے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ شہر شہر گاؤں گاؤں کے سفر کے ساتھ میں ہوں لقمان علی۔ آغاز کریں گے خانپور سے۔ دوسری شادی کرنے والے شخص پر نئے سسرالیوں کا تشدد، دوسری بیوی نے شوہر کی مونچھیں اور بھویں کٹوا دی۔ دوسری شادی کرنے والے محمد حسین کا کہنا ہے شادی کے بعد پتہ چلا بیوی نے پہلے بھی کئی نکاح کیے، اس بارے میں پوچھنے پر طلق کلامی ہوئی تو بیوی کے بھائیوں نے نشہ آور چیز کھلا کر مونچھیں اور بھویں کاٹ دی۔ محمد حسین کے مطابق 50,000 نقدی اور موٹر سائیکل بھی چھین لی۔ میری دوسری شادی تھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اندر پیچھے میرے کو پتہ نہ ملی ڈا نکال 15 نکاح ہیں، وہی میں ثبوت رہتا ہوں نکاح ہے میں تھا کوئی پڑھنا میں نے قرآن چاہتے میں نے دھوکھا کیا میں میری ایسا قرآن ہے تو سر پڑھنے کو دوسرا کو بٹا دے ایسا بٹا کی سے شادی کی تھی، میرے کو دگا دے تھے سیدھا گھر لے میں ہوئی تو بات رات میرے کو نشے کو لے تھے، میرا ناک پہ کپڑے دے بیان پھر بیٹے منی نے میرا مچھا منی نے میرا بنڈو کوئی گاڑی میرا 50,000 کی گاڑی اللہ کا نام منو میرے نال امداد۔ اور بہاول نگر میں قانون کے رکھوالے نے خاتون کی عزت تار تار کر دی۔ ایلیٹ فورس کے جوان نے شادی شدہ عورت کو بے آبرو کر دیا، اہلکار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ متاثرہ عورت نے وزیر اعلیٰ سے انصاف فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ تھانہ صدر کا علاقہ میں ایلیٹ فورس کے جوان سیف الرحمان نے شادی شدہ خاتون کو گھر میں گھس کر زیادتی کا نشانہ بنایا، تاحال اہلکار کو حراست میں نہیں لیا گیا۔ متاثرہ خاتون کا کہنا ہے ایلیٹ فورس کے ملازم نے اسے دوستی کی پیشکش کی، انکار پر زبردستی گھر میں گھسایا۔ ملزم مقدمہ واپس لینے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ خاتون نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کی درخواست کی ہے۔
मंडी बहाउद्दीन चक सेदा के करीब कार ट्रेन की जद में आ गई। मिल्लत एक्सप्रेस की टक्कर के बाद गाड़ी नहर में जा गिरी। 3 अफराद जहां बहक हो गए। लाशें तहसील अस्पताल मलिकवाल मुंतकिल कर दी गई, जहां बहक अफराद की शनाख्त हो गई है। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक न होने की वजह से पेश आया। सरगोदा की तहसील भलवाल में शुगर मिल के मजदूरों पर गरम शीरा गिर जाने से 5 मजदूर बुरी तरह झुलस गए। 2 मजदूरों की हालत तशवीशनाक है, एक को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक शुगर मिल में बॉयलर होने के बायस गरम शीरा काम करने वाले मजदूरों पर जा गिरा, जिससे 5 मजदूर झुलस गए। वाक़े के खिलाफ शुगर मिल के मजदूरों ने काम बंद कर दिया है। ठट्ठा सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स ने झुलसने वाली बच्ची के इलाज से इनकार कर दिया है। 7 साल बच्ची को इमरजेंसी में लाया गया, मगर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स ने तिब्बी इमदाद देने से इनकार कर दिया। वाक़े पर जमात इस्लामी ठट्ठा के अमीर ने शदीद एहतजाज किया। सिविल अस्पताल के इनकार पर झुलसी हुई बच्ची को प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। जमात इस्लामी ठट्ठा के अमीर अब्दुल्ला गंदूर का कहना है कि अस्पताल इंतजामिया का रवैया अफसोसनाक है। करोड़ों रुपए बजट लेने के बावजूद आवाम सेहत की सहूलियात से महरूम है। उन्होंने वजीर आला सिंध, वजीर सेक्रेटरी सेहत से नोटिस लेने का मुतालिबा किया। अस्पताल के सिविल सर्जन का कहना है कि मामले की इंक्वायरी की जा रही है। और अब आपको बताएं कि उमरकोट जीडीए और पीटीआई की जानिब से अल्लाह वाला चौक पर एहतजाजी धरना दिया गया। बड़ी तादाद में कारकुनों ने शिरकत की। टायर नजर आतिश करके मेन रोड को ब्लॉक कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता रोज सूबाई वजीर सैयद सरदार शाह की जानिब से जलसे में सरेआम इंतकामी कार्रवाइयों के ऐलान के बाद इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। सियासी कारकुनों पर झूठी FIR दर्ज करके गिरफ्तार किया जा रहा है। इस मौका पर जीडीए रहनुमा साबिक वजीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम ने कहा कि हम इनकी FIR से नहीं डरते, हम अपने कारकुनों का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। 4 सदा में 2016 को दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले बाचा खान यूनिवर्सिटी के शोहदा की याद में तकरीब हुई। 5 साल पहले पेश आने वाले सानहे में 14 तलबा, असिस्टेंट प्रोफेसर और 4 मुलाजिमीन शहीद हुए थे। बाचा खान यूनिवर्सिटी 4 सदा के वाइस चांसलर मेरिटोरियस प्रोफेसर डॉक्टर बशीर अहमद ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह खानी की। 4 सदा पुलिस और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के जवानों के चाको चौबंद दस्ते ने यादगार पर सलामी पेश की। तलबा, असातिज़ा और यूनिवर्सिटी के दीगर मुलाजिमीन ने शोहदा के साल सवाब के लिए यूनिवर्सिटी के लॉन में कुरान खानी भी की। कबायली जिला बाजोट में नौजवान और ताजिर बरादरी के लिए FC नॉर्थ डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। वर्कशॉप में नौजवानों के अलावा ताजिर बरादरी के अफराद भी शरीक हुए। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ माज खान से। माज, बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं खार पब्लिक स्कूल जो कि कबायली ज़िला बाजोड़ में वाक़ है उसमें मौजूद हूँ। इस स्कूल में डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। इस डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप में कबायली ज़िला बाजोड़ के नौजवान और ताजिर बिरादरी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अफराद सब शरीक है। और इस वक्त मेरे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो प्रेसिडेंट है कबायली ज़िला बाजोड़ के वो मौजूद है। उनसे पूछ लेते हैं कि इस डिजिटल मार्केटिंग का क्या फ़ायदा होगा। आजकल दुनिया में तमाम कारोबार ऑनलाइन है और इसका फ़ायदा हमारा नौजवान नस्ल को होगा, क्योंकि अगर नौजवान नस्ल इस ऑनलाइन प्रोग्राम में शामिल हो जो पूरा दुनिया से अभी पूरा वर्ल्ड से हमारा जो है ना प्रोग्राम इसी है कि वो सारे जो है ना डिजिटल मार्केटिंग की बुनियाद पे इंशाल्लाह ताला ऑनलाइन लोग रोज़गार कर लेंगे। अगर इसके अंदर हमारा नौजवान नस्ल आएगी, हमारा कारोबारी बिजनेसमैन लोग आएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा पैदा है। आजकल नौजवान जो है ना वो बेरोज़गार है, नौकरियों के चक्कर में है, लेकिन ये एक ऐसी काम है, एक मार्केटिंग है कि आप घर बैठकर इससे जो है ना पैदा उठा सकते हैं। और यहां एक बड़ी खबर आपको दें, पाकिस्तान की एक और कामयाबी, शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल 2750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद बलोच, मजीद बताइए इस अहम कामयाबी से मुतालिक। पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का तजुर्बा किया गया है और इस
میزائل کی جو رینج بتائی جا رہی ہے ICR کی طرف سے وہ 2750 کلومیٹر ہے، یعنی کہ 2750 کلومیٹر تک یہ میزائل اپنا ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ بحر عرب میں میزائل کی ٹیسٹنگ جو ہے اس کو ہدف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے جو ہے وہ سائنسدانوں کو مبارکباد دی ہے۔ اس تجربے کے نتیجے میں جو ہے وہ ٹیکنیکل پیرامیٹرز کو جو ہے وہ ٹیسٹ کیا گیا ہے کہ کس حد تک جو ہے وہ ٹیکنیکل پیرامیٹرز جو ہیں وہ مختلف ڈیزائن جو ہے وہ کام کر رہے ہیں جو ہے وہ ان سائنسدانوں کے۔ بہرحال یہ ایک اہم کامیابی ہے پاکستان کی اور یہ تجربہ کامیاب رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید بلوچ، بیورو چیف اسلام آباد، اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ ہم کامیابی ہے پاکستان کی، پاکستان ایک اور کامیابی اپنے نام کر چکا ہے۔ شاہین بلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ میزائل 2750 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ پاکستان کی بڑی کامیابی سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی ایک اور کامیابی، شاہین بلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے پاکستان نے۔ میزائل 2750 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ پاکستان کی ایک اور دفاعی کامیابی سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ شاہین بلسٹک میزائل کا پاکستان نے کامیاب تجربہ کیا ہے۔ میزائل 2750 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو بآسانی نشانہ بنا سکتا ہے۔ پاکستان کی ایک اور کامیابی، دفاعی میدان میں پاکستان نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ شاہین بلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ میزائل 2750 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو بآسانی نشانہ بنا سکتا ہے۔ پاکستان نے دفاع کے میدان میں ایک اور بڑا سنگ میل عبور کر لیا ہے، ایک اور بڑی کامیابی اپنے نام کر لی ہے۔ شاہین بلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ حیدرآباد میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کے اوسان خطا کر دیے۔ ایک ہفتے کے دوران فی کلو آٹے کی قیمت میں 6 سے 7 روپے کا اضافہ ہوا۔ ضلعی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے حیدرآباد سے ناصر شیخ کی رپورٹ میں۔ حیدرآباد میں ایک مرتبہ پھر آٹے کی فی کلو قیمت میں 6 سے 7 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ آٹا اب غریب افراد کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے۔ حیدرآباد میں ایک ہفتے قبل آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 620 روپے میں فروخت کیا جا رہا تھا، جو کہ اب 680 روپے میں مل رہا ہے۔ آٹا دن پہ دن مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ 10 کلو کا تھیلا 680 روپے کا ہو گیا ہے۔ غریب آدمی کھائے تو کیا کھائے؟ کا تھیلا جو ہے وہ 680 روپے کا فروخت ہو رہا ہے، 680-690 روپے کا فروخت ہو رہا ہے۔ غریب آدمی بیچارہ کیا کرے؟ حیدرآباد میں 185 آٹا چکیاں اور 10 فلور میلز ہیں جنہیں گندم فراہم کرنا محکمہ خوراک کی ذمہ داری ہے، لیکن محکمہ خوراک کے راشی اور بدعنوان افسران فی چکی کو روزانہ 3 بوری اور فلور میل کو 10,15,000 بوریاں ماہانہ دیتے ہیں، جو شہریوں کی ضرورت کے لیے ناکافی ہے۔ لہٰذا چکی مالکان کو کھلی منڈی سے مہنگے داموں گندم خریدنی پڑ رہی ہے۔ ادھر ضلعی انتظامیہ محض خانہ پوری کے لیے 2-3 مقامات پر سستا آٹا فروخت کروا رہی ہے، لیکن وہاں بھی اس قدر رش ہوتا ہے کہ وہ آٹا لوگوں کو نہیں مل پاتا۔ کیمرہ مین عادل خان کے ساتھ ناصر شیخ، نیو نیوز، حیدرآباد۔ قصور اور گردنوا میں آٹا نایاب ہو گیا۔ سخت سردی میں عوام آٹے کی تلاش میں دربدر دھکے کھانے اور سارا دن لائن میں لگنے پر مجبور ہو گئے۔ قصور سے رپورٹ کریں گے شہروز زیب۔ قصور سے گردنوا میں آٹا نایاب ہو گیا، جبکہ ضلعی انتظامیہ ذخیرہ اندوزوں بااثر مافیا کے سامنے بے بس نظر آتی ہے۔ عوام آٹے کی تلاش میں در بدر ٹھوکریں کھانے اور سارا دن لائنوں میں لگنے پر مجبور ہو گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مزدوری کریں یا دن بھر آٹے کی لائنوں میں لگے رہیں۔ صبح 6 بجے رکشہ لے کے نکلے ہاں، ایک بھی پھیرا نہیں لایا رکشے دے، 10 کلو آٹے واسطے ترلے مارنے ہیں۔ قصور میں سخت سردی کے باعث ضعیف العمر مرد اور خواتین آٹے کے حصول کے لیے لمبی لائنوں میں صبح سے شام تک کھڑے رہتے ہیں، جن کو اگر خوش قسمتی سے آٹا ملتا بھی ہے تو صرف 10 کلو کا تھیلا، جسے لے کر وہ اس مایوسی سے لوٹتے ہیں کہ کل پھر دوبارہ آٹے کی لائنوں میں کھڑا ہونا ہوگا۔ سویر دے لائن چ لگے پے ہیں جناب، 800 روپے دیہڑی توڑی ہے تے او دیہڑی توڑ کے آٹا لین آ گئے ہیں۔ اتوں بھی اے جی مل گیا تے مل گیا، نہ مل گیا تے دیہڑی تے گئی۔ دوسری طرف شہریوں کی شکایت ہے کہ آٹا مل مالکان بلیک میں سیل کر رہے ہیں۔ عوام نے صوبائی وزیر خوراک اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے قصور اور گردنوا میں آٹے کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہروز زیب، نیو نیوز، قصور۔
बहावल नगर के नवाही गांव मंडी मदरसा के शहरी आटे के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। डिप्टी कमिश्नर से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। दुकानदार कहते हैं 20 से 30 थैलों का कोटा था जो सील हो गया। लोगों का कहना है कि गांव की आबादी 20,000 से भी जायद है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 20 से 30 थैलों का कोटा था जो सेल हो चुका है और रोजाना इसी तरह आवाम की जानिब से कहा जा रहा है कि धक्के खाने पर मजबूर हैं। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। डिप्टी कमिश्नर से मुतालिबा है कि मंडी मदरसा के लिए आटे का कोटा फौरी बढ़ाया जाए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। पन्नू आकिल के नवाही इलाके जदीद दौर में भी सुई गैस की सहूलत से महरूम है। 10 साल कबल सुई गैस की स्कीम का इफ्तिताह किया गया, पाइपलाइन भी बिछाई गई, लेकिन कई साल गुजरने के बावजूद जानेंगे पन्नू आकिल से नुमाइंदा न्यूज़ अली रजा से। जी अली रजा बताइएगा। जी, शहर के करीबी गांव जुम्मो जिसका के रिहायशियों को इस जदीद दौर में भी सुई की सहूलत जो है वो फराम नहीं है। यहाँ पर 2011 में पीपल्स पार्टी की एमपी रायनाज बोजदार की जानिब से गांव जुम्मो जिसका लिए सुई गैस स्कीम का इफ्तिताह किया गया था और उसके बाद सुई गैस इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर लाइन भी बिछाई गई थी। यहाँ के जो रिहायशी हैं उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा कर 2011 से आज तक हम एहतजाज करते रहे हैं, एप्लीकेशन भेजते रहे हैं, बाला हुकाम से मिलते रहे हैं, गैस अमलदारों से, लेकिन खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिल रहा। इसीलिए हम आज जो है मुजाहरा किया है, हमने एक तहरीक शुरू की है। इन मुजाहिरीन ने हल्के से मुंतखब नुमाइंदों और वफाकी सरकार से मुतालबा किया है कि 2011 में इफ्तिताह की गई इस सुई गैस स्कीम को जल्द मुकम्मल करके हमें जो है वो सुई गैस की सहूलत मुहैया की जाए। गुर्बत और अफलास के दर्दनाक दास्तां समारोह का रामचंद पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गया। तूफानी बारिशों ने सर से छत का साया छीन लिया, इस पर बेटे की बीमारी ने आ लिया। फालिज ज़दा बेटे के इलाज, सब जमा पूंजी इसी पर खर्च कर दी। डॉक्टरों ने बेटे को इलाज के लिए कराची ले जाने का मशवरा दे दिया। रामचंद कहता है घर में फाके हों तो बेटे को कराची कैसे लेकर जाऊं। हुकूमत से बेटे के इलाज के लिए माली इमदाद की अपील कर रहा है। रिपोर्ट देखते हैं। समारोह में तूफानी बारिश मकान गरीब रामचंद खुले आसमान तले खैमे में पनाह लेने पर मजबूर। मकान के सदमे से नहीं निकला था। चंद का 13 साला बेटा रमेश फॉलिज के मर्ज में मुब्तला हो गया, इसका एक गुर्दा भी नारा हो गया। बेटे के इलाज पर सारी जमा पूंजी लुटा दी। हालत ये हो गई कि घर में की नौबत आ गई। बेटे का इलाज नामुमकिन हो गया। नियो न्यूज की टीम से बात करना चाहिए, लेकिन रमेश की फालिज ने साथ ना दिया। रामचंद ने बताया कि इसका बेटा फॉलिज में मुब्तला है, इनके पास खाने को भी कुछ नहीं। डॉक्टर्स कहते हैं बेटे को इलाज के लिए कराची ले जाओ। लोन सेवर थे वो भी बेचकर उनका इलाज किया, अभी कुछ नहीं रहा है घर में। बच्चे का गुर्दा भी खत्म हो गया है। अब डॉक्टर ने बोला अभी कराची ले जाओ। कराची पर हमारा पैसे नहीं इतने, हम कहाँ से लाए। हम कुछ को नहीं ना घर में कुछ को तबू बाते बैठा उनके छोरे के फाल से नहीं बैठी नहीं खाई सक। गुर्बत और इफलास का शिकार खानदान मसाइल के हल के लिए किसी मसीहा का मुंतजिर है। हुकूमत से भी बेटे के इलाज के लिए माली इमदाद की अपील कर दी। कैमरा टीम के साथ राशिद हनीफ, कायम खानी, नियो समारोह। और यहाँ शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही महंगाई मजीद बढ़ गई। चीनी, घी, दालें लोगों की पहुंच से दूर होने पर हरिपुर के शहरी सरापा एहतजाज है। मजीद जानते हैं इस हवाले से नुमाइंदा न्यूज़ से तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक, बताइएगा क्या कह रहे हैं शहरी? जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह हरिपुर में महंगाई के खुसात जो भी इन्होंने किए हुए हैं वो उसके खिलाफ हरिपुर के शहरी सरापा एहतजाज हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया गया है। मेरे साथ एक शहरी खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। और ये लोग अपने घरों में इसलिए निकले हैं कि हम अपने बच्चों का राशन शाम को लेके जाएंगे, लेकिन अभी तक किसी की दिहाड़ नहीं लगी है। ये क्या करेंगे, शाम को क्या लेके जाएंगे? लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी में असर नहीं हो रही हैं, इससे शदीद लोग मुतासर हैं। लोगों का मुतालबा है कि वो अपनी पुरानी कीमतों पर बहाल की जाएँ। जी। और उधर सफदराबाद के मकीन महंगाई से परेशान है। शक्कर और नोश की कीमतों में इजाफे ने गरीब तबके के 14 तबक रोशन कर दिए हैं। आम आदमी के साथ छोटे दुकानदार भी बढ़ती महंगाई पर बिलबिला उठे। मजीद बताएंगे सफदराबाद से मोहम्मद रफीक। जी रफीक। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह सफदराबाद में भी महंगाई का तूफान जो है थमने का नाम ही नहीं ले रहा। रोज़मर्रा इस्तेमाल में फ्रूट, सब्जियां, दालें और मसालायात की कीमतें जो हैं पहले ही आसमानों से बातें कर रही हैं, जबकि घी, चीनी और आटे की कीमतों को भी एक बार फिर से पर लगे हैं। आला क्वालिटी का बनास्पति घी जो है 150 रुपये से बढ़ाकर 280 रुपये किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि चीनी जो है 82 रुपये से बढ़ाकर 95 से 100 रुपये किलो तक के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना है कि जाएं तो कहां जाएं। मजदूर आदमी जो है सारा दिन मेहनत मजदूरी करके शाम को 500-600 रुपए दिहाड़ी कमाता है, जिससे उसका चूल्हा भी नहीं जलता। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई को फौरन कंट्रोल किया जाए ताकि आवाम को कुछ न कुछ रिलीफ मिल सके। जी। सर्दी के बायस मीरपुर खास में चूल्हे ठंडे पड़ गए। घरेलू सार्फिन के लिए सुई गैस नायाब हुई तो लकड़ियों की कीमतों में भी मनमाना इजाफा कर दिया गया। मीरपुर खास से रिपोर्ट करेंगे बिलाल महमूद। मीरपुर खास में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग घरेलू सारिफीन के लिए शदीद परेशानी का बाइस बन गई है। घंटों इंतजार की सूली पर लटकने के बाद भी शहरी महंगे दामों बाजारों से खाना मंगवाने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि महकमा बिल तो बहुत ज्यादा भेजता है, लेकिन मौसम सरमा में गैस नायाब कर दी जाती है। सर्दी के मौसम में हमारे मोहल्ले में बिल्कुल भी गैस नहीं आता और इसमें जो है हमारे को बहुत परेशानी होती है। होटलों से खाना लेना पड़ता है, महंगे दामों में लकड़ी लेना पड़ती है। लकड़ी के वसाइल से जो है बहुत परेशानियां होती हैं। गैस का 3 बजे के बाद फिर आती नहीं, आती है 7 बजे। इस टाइम में होती नहीं है। खाना वाना सुबह भी कम होती है। सर्दी हो या गर्मी, मीरपुर खास के शहरियों को लोड शेडिंग का अजाब गुज़िश्ता कई सालों से बर्दाश्त करना पड़ रहा है। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि इन बुनियादी मसाइल के इदराक के लिए हुक्मरान वक्त ठोस इकदाम करें और लोगों को इस अजाब से निकालें। बिलाल महमूद, न्यूज़, मीरपुर खास। सूबाई मुशीर अक़लियती उमूर दिनेश कुमार ने हुकूमत बलोचिस्तान की जानिब से सिब्बी में अक़लियती बरादरी के 250 मुस्तहिक अफराद में 30 लाख रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए। दूसरी जानिब मुस्तहिक अफराद का कहना है इमदादी चेक मनपसंद अफराद में तकसीम किए गए हैं। सिब्बी से मजीद बताएंगे रमेश कुमार। हुकूमत की तरफ से सिब्बी के जिरगा हॉल ऑडिटोरियम में अक़लियती बरादरी के मुस्तहिक अफराद में चेक तकसीम करने की तकरीब। सूबाई मुशीर अक़लियती उमूर दिनेश कुमार ने 250 के करीब मुस्तहिक अफराद में 10-10 हजार रुपए के चेक तकसीम किए। 20 करोड़ का खतीर फंड रखा अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए, और आप देख रहे हैं कि आज 40 लाख रुपए आपके सिब्बी में खर्च किए जा रहे हैं। बलोचिस्तान के कोने कोने पर जहाँ पर हमारे अक़लियती बिरादरी, गैर मुस्लिम बिरादरी रह रही है, उनको जो ज़रूरतमंद है, बेवा हैं या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो नीडी पीपल है, उनकी हम भरपूर तरीके से मदद करें। दूसरी जानिब मसीही बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले मुस्तहिक अफराद का कहना है लिस्ट में नाम होने के बावजूद उन्हें चेक नहीं मिला। कहते हैं ऐसे लोगों को चेक मिल गए जो मुस्तहिक नहीं। जो मनपसंद लोग थे उन लोगों को 7-7 एक घर से 7-7 लोगों को दिए गए हैं। लोगों को मिले हैं, मुझे चेक नहीं दिया गया है और मेरी वज़ीर आला से अपील है कि वो जो उनसे है ना इससे बात का नोटिस लिया जाए। वो लोग मुझे रात को बोलने के लिए आए, फिर सुबह आना चेक लेने के लिए। वो गई हूँ और मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई बोला नहीं चेक के लिए। नादार अफराद ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से इंक्वायरी की अपील की है। कैमरा टीम के साथ रमेश कुमार, न्यूज़, सिब्बी।